Good afternoon, everyone. Myself, Umesh Kumar Mishra. From last 30 years, I have been teaching economics to class first year and second year. My way of teaching is a little bit slow, steady, and very informative. Children from all the background, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, they have realized that whatever I teach is very comfortable in understanding, in writing, and solving the main purpose. And the purpose of the study is to get the maximum marks. Today, I have started making videos on YouTube, and firstly with class first year. Before I start, I must tell you all, मुझे ये बताना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं who don't know the code of different subjects. CBSE has given code to each and every subject of study. As far as economics is concerned, it is 030. You all must write it in your diaries, in your notes, that the code of economics is 030. It is 030. Whenever you say 030, that means economics and economics only, for both 11th and 12th. Before starting the syllabus, I must tell you two things. That economics is not a purely theoretical subject. It is very logical. You have to think logically before writing the answers, before understanding the topics. Proceeding, first of all, we start with the course structure. Course structure. The course structure of class first year is divided into two parts. That is part A. दो पार्ट में बटा हुआ है, part A and part B. Part A is economics, stat for economics, statistics for economics, and part B is introductory microeconomics. First, starting with statistics for economics. ये part जो है, this is of 40 marks, and this one is also of 40 marks. That's total marks of economics is 100, and out of this 80 marks is written and 20 marks is for project based assessment. कोर्स स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस एज पर सीबीएसई बोर्ड, सिलेबस एज पर सीबीएसई बोर्ड 2026-27, the main highlights or new trends are to know the changes in government policies. Second thing, recent events. Third is weightage
weightage adjustment. Fourth is case-based study, case studies. And last one is digital tools. Digital tools. These are the new highlights of syllabus of class 11th as per CBSE board for the 26-27 session. Board has emphasized more on these 5 points. First thing, the children should be well aware with the recent changes in the government policies. Government ने क्या क्या changes किए हैं, क्या क्या amendments किए हैं for the 26-27 session. They should be familiar with it. Second thing, recent trends और events क्या क्या हुए हैं हमारे देश में, उसका economical impact क्या पड़ा है. What will be the economical impact on the recent of the recent events on the context of India. Second thing, weightage adjustment. Weightage adjustment means which topic has how much marks is being awarded, or which are the topics which are more important, which are lesser important, and which are most important. Third, next thing is case studies. ये पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस, ये CBSE ने इसको इंट्रोड्यूस किया है अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में. और केस स्टडीज में होता क्या है कि दे गिव अ पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में कुछ ना कुछ उसमें इवेंट्स दिए रहते हैं, कुछ उसमें हैपनिंग्स दी रहती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और उन आंसर्स के बेस पे ही आपको मार्क्स मिलता है. इट्स क्वाइट इजी बट वेरी लॉजिकल, वेरी टेक्निकल. एंड देन द लास्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल्स इन इकोनॉमिक्स. इस पे फोकस किया है पूरे सिलेबस में CBSE बोर्ड ने. और बिफोर वी प्रोसीड, आई मस्ट टेल यू दैट you all should go for NCERT books only. NCERT books only. क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो that will be based totally on NCERT only, whether either it is class 11th or class 12th. So इतना बताने के बाद मैं आपको अब आगे चलता हूँ पेपर पैटर्न पे बात करने. पेपर पैटर्न जैसा कि मैंने अभी बताया था, इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी. दोनों पार्ट जो है 40 मार्क्स का होता है. टोटल आपका 80 मार्क्स का होगा. रिटन जो आप अपने सेंटर पे जाके लिखें, इफ इट इज होम सेंटर, एट योर ओन स्कूल, इन डिफरेंट रूम्स, यू विल बी सिटिंग एंड यू विल राइट द पेपर. और 20 मार्क्स आपको इंटरनल फाइल्स बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा. उस प्रोजेक्ट के बेस पे जो टीचर्स, आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं, दे विल असेस यू, and the marks given out of 20 will be added to 80 marks. In total, it will be the total marks achieved will be out of 100, and these 100 will be added in your other subjects, and you will get the total result. इसमें आपके MCQ भी होंगे पेपर में. MCQ के साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे. ठीक है, इन सबका समावेश होगा, सबका कॉम्बिनेशन होगा आपका पेपर. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बिफोर वी प्रोसीड. द डिफरेंट थिंग्स विच टीचर इन इकोनॉमिक्स, एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, एज वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ओनली, और आई विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स ओनली. जो एग्जामिनर होते हैं आपके, व्हाट दे एक्सपेक्ट, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ये मैं बता दूं आपसे. कि आप जो पेपर, जो आंसर्स लिख रहे हैं अपने क्वेश्चंस के जो आप आंसर्स लिख रहे हैं, उसका सिस्टम क्या होना चाहिए, किस पे वो मार्क्स देते हैं. फर्स्ट इज डेफिनेशन, कि जो भी वो टॉपिक पूछेगा उसका प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, और इफ पॉसिबल मोर एग्जैक्ट. जो कहा गया है इकोनॉमिक्स के द्वारा फ्रॉम द वेरियस इकोनॉमिस्ट, it should be given in the same manner within the inverted commas if possible. उससे क्या होता है, you are more exact, more precise and more defining.
सेकंड थिंग, जो आप इसको डेफिनेशन देंगे उसको पैराग्राफ चेंज करके उसको एक्सप्लेन इट. Explanation is the second heading. After writing definition, you have to explain the things. कि आप इस डेफिनेशन से आपको क्या कंक्लूजन मिला, क्या आप समझ पाए, इसको आप लिखना पड़ेगा. Then the keywords. Keywords क्या होते हैं? That includes headings and topics which are covered in your study. These are known as keywords. Then comes examples. जो भी आप लिखें उसमें एग्जाम्पल्स जरूर कोट करें, बहुत लेंदी नहीं, 1 to 2 examples must be quoted along with your keywords. That sounds good and will fetch you good marks. Next is, if possible, wherever it's possible, wherever it is possible, go with diagrams or graphs. जहां पॉसिबल हो, नहीं भी बोला है क्वेश्चन पेपर में, स्टिल यू शुड एंड यू मस्ट गिव डायग्राम्स. कहीं भी थोड़ा सा अगर लॉ ऑफ डिमांड है, डिमांड की बना दीजिए, कुछ एरोज से आप इंटीमेट कीजिए, कुछ एब्रीविएशन यूज कीजिए, कुछ उसको मैथमेटिकल रूप दीजिए. दैट विल एनहांस योर मार्क्स एंड योर पोटेंशियल. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. नेक्स्ट इज कंक्लूजन, कि जो आप लिख रहे हैं इसका लास्ट स्टेप कंक्लूजन होना चाहिए. कि जो भी आपने लिखा है, व्हाट डू यू कंक्लूड? दैट शोज योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर एक्सप्रेशन. This all is expected from you all in the examination paper. And if you go by this method, by these steps, you will definitely get more than 95 to 100, in between 95 to 100% marks. पहले नहीं आता था, लेकिन आज 100% marks is easily achievable in board examination. So you have to start right from today itself. आपको आज ही से शुरू करना पड़ेगा इस तरह से पढ़ाई करना, इस तरह से अपना लिखना. बिफोर वी प्रोसीड, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि जो भी आप लिखते हैं, जैसे डेफिनेशंस लिखते हैं, इट शुड बी अंडरलाइंड. आपने डेफिनेशन लिखा डिमांड, सपोज, सो अंडरलाइन इट. ठीक है. सप्लाई, अंडरलाइन इट. आप लिखते हैं वो तो क्लियरली विजिबल होता है, बट इफ यू अंडरलाइन इट ना, इट बिकम्स मोर इंप्रेसिव. अपने आंसर्स को इंप्रेसिव करना है और अपने आंसर को ऐसा कर देना है कि एग्जामिनर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए एंड ही इज बाउंड टू गिव मार्क्स टू यू. जो सिस्टमेटिक लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखिए इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ. आजकल पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता. नोबडी हैज टाइम टू रीड गो थ्रू द पैराग्राफ. इट इज बेटर टू राइट पॉइंट वाइज लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, हेडलाइन दीजिए. सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स विच एनहांसेस द मार्क्स, विच विल एनहांस योर मार्क्स. ये सब सिस्टम होता है किसी भी अच्छे पेपर के लिए. दूसरी चीज, यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन योर राइटिंग. अगर आपकी राइटिंग किसी भी वजह से कुछ थोड़ा सा आपको पसंद नहीं आ रही है, सो स्ट्रेट वे राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, स्टार्ट राइटिंग और प्रैक्टिसिंग. स्टार्ट राइटिंग डेली. राइट at least 2 to 3 pages. English, ठीक. That will enhance your speed. इससे क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी आपकी, राइटिंग अच्छी होगी, स्किल्स बढ़ेंगे, ठीक है. आपके मेमोरी शार्प होगी. और सबसे बड़ी बात क्या होता है एग्जामिनेशन में, क्या होता है कि यू हैव ओनली 3 hours to write.
Out of 3 hours, the objective questions takes 15 to 20 minutes. ठीक है, रेस्ट 2.5 hours में आपको 15 मिनट्स रिवीजन के लिए चाहिए, एंड दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विथ 2 hours 15 minutes. और 15 मिनट्स भी छोड़ दीजिए, यू हैव ओनली 2 hours टू राइट द अदर क्वेश्चंस. सो उसको लिखने के लिए यू मस्ट हैव स्पीड एंड राइटिंग पावर. तो इन 2 चीज़ों पे काम करना आपको आज से शुरू है, लेकिन ये होगा कब? जब आप ये करेंगे, जब आप आज से ही इंग्लिश लिखना शुरू करेंगे, यू विल इम्प्रूव योर स्पीड. और अगर आपकी राइटिंग खराब हुई, सो डेफिनेटली यू विल लूज योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. पिछले सालों में ये देखा गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन लास्ट 2 or 3 years, कि दोज हु वर इन टॉपर लिस्ट they lost their marks. They lost their marks due to writing only. और बाद में कहने लगे, जब मार्क्स आए तो उन्होंने कहा सर मेरी थोड़ी राइटिंग खराब थी इसलिए मुझे नंबर. दे न्यू एवरीथिंग, सब कुछ उनको आता था, पॉइंट वाइज भी लिखा, लेकिन बड़ा ही ऐसा कैसा लिखा कि एग्जामिनर को समझ नहीं आया. एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 marks ही गेव और शी गेव ओनली 1. और ऐसे 2-2 नंबर सब में करता गया, और जो टोटल आया दैट वाज लो, वेरी लो एज कंपेयर टू एज एक्सपेक्टेड. सो इसलिए आप आज से ही राइटिंग सुधारिए. सेकेंड थिंग, पॉइंट वाइज लिखिए. थर्ड थिंग, अंडरलाइन द थिंग्स. फोर्थ थिंग, हाईलाइट करिए. ठीक है. फिफ्थ थिंग, नीटली लिखिए. तो ये सब के. सिक्स्थ इज यूज डायग्राम्स. सेवेंथ इज कंक्लूजन. ठीक, इस सब पे आपको फोकस करना है. व्हाट वी डिस्कस इन दिस वीडियो. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है. मैं बस यही चाहता हूं कि आप सभी लोग जो आज तक नंबर नहीं पा पाए हैं, या अपनी पढ़ाई को ठीक से ढंग से नहीं सीरियसली लिए हैं, उसको थोड़ा सा सीरियसली लें और पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दें. क्योंकि आज की जो पढ़ाई है बेटा, वो बहुत टफ हो चुकी है. इट इज़ नॉट ईजी टू गेट मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन नाउ इट इज़. क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, दैट इज़ ऑन स्क्रीन मार्किंग. आपने देखा होगा इस साल बहुत प्रॉब्लम आई है इन क्लास 12th. ये 12th में मार्किंग शुरू, और OSM शुरू हुआ है, दिस विच इज़ नोन एज ऑन स्क्रीन मार्किंग. ऑन स्क्रीन मार्किंग में पहले क्या होता था कि, तो अगर जब मैनुअल चेक होता था, तो अगर आपका थोड़ा बहुत इधर लग भी रहा है, तो यू यूज टू गिव मार्क्स. मतलब 2 नंबर का है, थोड़ा सा राइटिंग गंदी है, तो यू यूज टू गेट 1.5 आउट ऑफ 2. तो आधा नंबर काट के एग्जामिनर जो है थोड़ा बहुत पढ़ के वो समझ मार्क्स दे देते थे. लेकिन ऑन स्क्रीन मार्किंग में दिस इज नॉट पॉसिबल. यू विल गेट द एग्जैक्ट मार्क, आइदर यू विल गेट 1 or 2. लेकिन अगर कुछ गलत है तो यू विल नॉट गेट 2, यू विल गेट 1 ओनली. सो यू लूज हाफ मार्क्स. एंड इफ यू लूज हाफ मार्क्स इन ईच क्वेश्चन, डेफिनेटली योर मार्क्स विल बी लेस. सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अब ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम हो गया है हमारे देश में, स्पेशली क्लास 12th में. सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड सिंसियर इन योर राइटिंग. और राइटिंग के स्किल्स मैंने बता दिया. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ओनली you have to follow these rules, these points, and you'll get the more than 95% marks, which is our target. I hope everything is clear till now. Now, I'm moving to the parts of the syllabus. जैसे मैंने सबसे पहले शुरू में बोला था, इकोनॉमिक्स जो है, जिसका कोड होता है 30330, सबको पता होना चाहिए, has 2 parts, part 1, part A and part B. पार्ट ए में आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स,
for economics. For economics. Under this, we are going to study introduction. Sorry. Introduction of stat and economics. After that, we'll study its relevance. कैसे ये रिलेटेड है हमारी लाइफ से और ग्रोथ से. हम क्यों पढ़ें इकोनॉमिक्स? सबसे पहली बात है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्यों? तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद रियल लाइफ, विच रिलेट्स विद रियल लाइफ. और आप सबको अपनी लाइफ को बढ़ाना है तो आपको इकोनॉमिक्स के थ्रू जाना ही पड़ेगा. इसके जो टॉपिक्स हैं, इसके जो चैप्टर्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू योर लाइफ. ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा. अदरवाइज इट इज सो टेक्निकल, सो लॉजिकल, यू विल फील बोर्ड. बट इफ यू टेक इट एज योर फ्रेंड, it will be your boss. You'll get the maximum marks you can score very well, maximum marks in this subject. So take it as your friend. Now, after this, we'll study collection of data. Data here means informations. आजकल जितनी भी दुनिया चल रही है, उस सबको जो है इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है. इस जनता की और जनता की ज़रूरतों की, इन सब की इंफॉर्मेशन चले. आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल जनगणना चल रहा है. जनगणना चल रहा है और जनगणना मतलब इसमें लोग 1 to 1 आ रहे हैं, एक एक घर पे जा रहे हैं और आपके घर के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं. आपके घर में क्या है, आपका घर कैसे चल रहा है, उसमें टाइल्स लगे कि नहीं लगे, उसमें लाइट की क्या व्यवस्था है, सोलर है या बिजली है, या आपके घर में वो स्कूटर है, कार है, इफ डू यू हैव अ 4-wheeler और नॉट. इन सब चीज़ के बारे में दे आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. दिस वी ऑल going to study under collection data. It has various methods of collecting data. We have different methods of collecting data, and these all methods will be studied under this chapter. Followed by organization of data. Same data. जो डाटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा में, वो बड़ी ही रॉ फॉर्म में होता है. Those data will be converted into organized form. उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, हम उसको ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे और कायदे से उसको बाइफर्केट करेंगे. जो ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले, फिर उससे जरूरी एंड सीक्वेंस में आप सेट करेंगे. दिस इज नोन एज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फॉलोड बाई प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. इस डाटा को जो आपने कलेक्ट किया, पहले ऑर्गेनाइज किया, इसको आप टेबल फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उसके बाद उसको हम प्रेजेंट करेंगे. प्रेजेंट मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और डायग्राम्स. इसमें आप जब शो करते हैं रिटन डाटा को, जब आप टेबल फॉर्म में करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. अलग अलग मेथड है, वो हम पढ़ेंगे. और उसके बाद जब उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, अभी विल स्टडी द होल चैप्टर इन एन एलेबोरेटिव वे इन द फॉलोइंग वीडियोस. अभी मैं खाली आपको शॉर्ट फॉर्म खाली हिंट दे रहा हूँ कि है क्या ये. उसके बाद उसको अगर डायग्राम में शो करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं, दैट मीन्स वी आर प्रेजेंटिंग द डाटा. फॉलोड बाई इंटरप्रिटेशन. Interpretation means giving your views in regard to the data. जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया, इसको पहले आपने कलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर प्रेजेंट किया ग्राफ की वजह. ये ग्राफ कह क्या रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन कह क्या रही है, उसको आप इंटरप्रेट करते हैं अपने शब्दों में. इकोनॉमिक्स शब्द बताते हैं कि इस डाटा से जो भी हमने कलेक्ट किया उसका निचोड़ ये है, इस डाटा से ये चीज़ें ड्रॉ होती हैं. और इसी इंटरप्रिटेशन को वी यूज फॉर फ्यूचर प्लान्स, फॉर फ्यूचर बजट, फॉर फ्यूचर
growth of the country. This all we are going to study under this topic, that is statistics for economics, and this carries 40 marks. 40 marks, part A. Now comes to part B. Part B में हम पढ़ेंगे again introduction. This is known as introductory माइक्रोइकोनॉमिक्स. पहले ये पार्ट जो है वो आज से 5 साल पहले जो है 12th क्लास में था, अब इसको 11th क्लास में कर दिया गया है. इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड टर्म्स. नेक्स्ट विल स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर and equilibrium. Then we will study demand. थर्ड में पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. आपको मालूम हुआ कंज्यूमर मतलब हम लोग, और हम लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं. हर चीज से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक हम डिमांड करते हैं, तो इसलिए हम कंज्यूमर कहलाते हैं. जो हमको हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं. अब उनकी साइड को हम पढ़ेंगे तो वो सप्लाई करते हैं. इसको हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे बड़े ही इलेबोरेटिव फॉर्म में. इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस मार्केट में कैसे तय होता है. प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मार्केट फॉर्म्स. कौन से मार्केट फॉर्म्स है, कैसे प्राइस डिटरमिन होता है. परफेक्ट कंपटीशन में, जब परफेक्ट कंपटीशन देश में चल रहा हो तो उसमें प्राइसेस कैसे डिटरमिन होता है. इन सब टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे. ये भी आपका 40 मार्क्स का है. सो इन ऑल एडिंग दीज टू इट इज 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट है. दैट टोटल कम्स टू 100. यही आपका पूरा सिलेबस है क्लास 11th का. सो माय डियर चिल्ड्रन, आप थोड़ा सा मेरा साथ दें, मेरे वीडियोस को देखें और अपनी लाइफ को बनाएं. एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, मैं आपको जीवन में जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें कैसे एनहांस हो सकता है इकोनॉमिकली. इकोनॉमिक्स मीन्स एवरीथिंग विच डील्स विद मनी एंड मनी मैटर्स. जो भी चीज़ें मनी से रिलेटेड, और हमारे ज़िंदगी में आजकल आप सभी जानते हैं कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मनी से अछूती है. हर जगह हर चीज़ का जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, जो एंड प्रोडक्ट है, दैट इज मनी जनरेशन ओनली टू एनहेंस आवर ग्रोथ. अपने उज्जवल भविष्य के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मेरे वीडियोस को देखिए, और इसी के साथ आप वेट करिए मेरे अगले वीडियो का, स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.